It's a great memory. Yeah, I met Prabhas sir on the sets of Coffee with Karan. I remember this, and this I clicked when I was dubbing for Bahubali. These two guys has very important place in my life. जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अलग पहचान दी है. Till now, in the whole wide world, I think if I go to any country and people remembers me with this name, Nahar Singh, I'm very proud of it. Rajashri, being Rajashri, she's a very close friend. She's a buddy. बहुत मजे किए हम लोगों ने. When you get into an image, फिर वो प्रॉब्लम वहाँ होता है. मैंने क्या किया, जब मैंने सात फेरे शो किया, तब मैंने 3 साल वो शो किया एंड मैंने रियलाइज किया कि मैं अभी जहाँ पहुँचना था एज एन एक्टर मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ. अब कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है. और जैसा कि होता है हमारे इंडस्ट्री में, टाइप कास्टिंग इज. मैंने एक शो किया जो मुझे एकता ने दिया और वो था एंटी हीरो शो था. वो लोगों ने मुझे गालियाँ दी मुझे, तू इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है, इतना स्वीट है, इतना अच्छा है, सब सारे हाउस होल्ड तुझे लाइक करते हैं. मैंने कहा नहीं, बट मैं एज एन एक्टर ग्रो नहीं कर रहा हूँ. तो जब मैंने वो कैरेक्टर किया तो इनिशियली लोगों ने जब प्रोमोज आया मुझे बहुत सारी गालियाँ दी. Sir, did you really charge the minimal amount for this? हाँ क्या मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसके बारे में. Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today all I can say is I am with the multi-talented Sharad Kelkar. Sharad, hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you Akriti. Sharad, you know, I would, जैसे मैंने बात भी की, I would not keep this as an interview, जी. but I would like you to take a trip down the memory lane with these set of photos that I have for you. Oh, lovely. I'm very excited to see what pictures you got. And even I am excited. Normally मैं अपने पिक्चर्स देखता नहीं पुराने, बट हाँ आप लेके आई हैं तो. So here I'm handing over you some pictures. आपको देखना है, पहला थॉट बोलना है, and then yeah, we may have some interesting Q&A with you. Yep. सही. First set है. वाह. These two pictures are with SS sir and Prabhas. A genius here and a great human being. A very shy guy जो मेरे साथ खड़े हैं, प्रभास गारू. तो it's a great memory. Yeah, I met Prabhas sir on the sets of Coffee with Karan. I remember this, and this I clicked when I was dubbing for Bahubali. So ये नहीं, एक्चुअली ये हाँ बाहुबली की डबिंग के टाइम का है, करेक्ट. सो दोनों पिक्चर उस टाइम की हैं. इट्स कैन आई कीप देम बिकॉज इट्स अ ग्रेट मेमोरी फॉर मी. एंड मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, मेरे पास शायद मेरे उससे हैं, बट मेरे पास प्रिंटेड कोई पिक्चर नहीं है. सो आई विल कीप देम विद मी बिकॉज दीज टू गाइज हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन माई लाइफ, जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अलग पहचान दी है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विद SS Rajamouli sir to work on camera now this time. Let's see if he gives me a chance. But you know, Sharad, when a director like SS Rajamouli have that faith in you, okay, Yeah. this guy can be the voice of my most, say, important franchise of career. As an actor, how does it validate you? You know, as an actor, you need that validation in your life, that when somebody shows that kind of confidence in you. And when he called me to dub Bahubali 1 specifically, and when we started dubbing, he used to come every day in the evening and he used to check. So the idea is when a director directs you or narrates you or he guides you, how quickly you grasp it and how quickly you execute it. That's one point. And I think that was one thing which I was focusing on that time कि यार ध्यान से सुनना है and exactly I have to do what he wants. So I think that process which we did for around 4-5 days, and after that everything was on automation. He never used to come every day, and used to come maybe once in 2 or 3 days and check how I have dubbed. So that trust building was happening in 4, 5, 6 days, for a week almost. And we used to dub small chunks initially because I wanted that validation that am I doing right or wrong. But he was damn sweet. He was a true guide. He was very clear about his narrative and his thoughts. Ki I want this dubbing in this pattern only. So that trust building was very, very important between us. And in the second part, when we were doing Bahubali 2, he didn't come for a single day on the dub. So I think that paid off what we did in the first part for a few first days. And then I think that understanding was there that whatever me and Manoj Muntashir, who was writing dialogues, the combination will do his job. He doesn't need to come here. So I think that process was very important, and I'm again looking forward for that process. Maybe in near future we might work again. But you know, with Bahubali, this one is an animated, Yep. franchise. Yep. I want to ask, when you dub for a theatrical version, Yeah.
plus an animated. Is there a difference? Yeah, it's a hell lot of difference because when you do a feature film, which is a live action film, that time they have shot with Prabhasar. Or if I dub any other film, they already shoot the film with some actor. So he acts in his pattern. He has different mannerism, different speech pattern. So I need to, match it in terms of his physicality, how a shorter or a bigger guy will move or act, or how his voice will sound. At the same time, his emotional, his face structure, how he moves his face. It should not look like a dubbed thing. It should look like my concentration always there. It should not look like a dubbed film. The sound should be his, what I'm creating. So my idea is that while animation particularly, because there is no face, there is no visual. So we record the voice first and then they create the animation. It's a reverse process. So animation, when we do, it's more interesting because I get the liberty to, act on mic, and I can do what I want to do. I am not in a certain foundation or a limitation where the other actor has performed, or I don't do match him. I can do what I want to do. So it's a very, very different process altogether. But on that note, when you dub for something like Legends of Hanuman, जिसका नया season भी आ रहा है, does that change your interpretation of a character like Ravana? Not interpretation, but yeah, the detailing, obviously, the story of that character or a broader arc about him. We know very specific things when we hear stories and all. But when I dub for Ravan particularly, it's in depth. It's in very detailed version of Ravan. And obviously, we get to know about the different shades, his relation with his wife, with kids, with his brothers, with Sugriv or Bali or all. So it's much more detailed. So yeah, aspects we come to know, but interpretation I would not say, because ultimately he's Ravan. So the baseline will not change, but yeah, the detailing changes. New picture. Arey, Rajashri Vaidya, now Rajashri Thakur to Rajashri Vaidya. This is very special because I think till now in the whole wide world, I think if I go to any country and people remembers me with this name, Nahar Singh, and I'm very proud of it that people loved my show. It was my first big show as my second year of acting, and I was very fortunate to get this show from Zee TV. Thank you, Subhash Chandra ji, आपने मुझे इस रोल के लिए सेलेक्ट किया था. Because Subhash ji was very, उस टाइम बहुत ज़्यादा एक बहुत इंटीग्रल पार्ट थे नेटवर्क के, बहुत ध्यान देते थे क्योंकि वो जी स्टैब्लिश कर रहे थे, तो बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत दिल के करीब शो है मेरे. राजश्री, being Rajashri, she is a very close friend, she is a buddy, तो बहुत मज़े किए हम लोगों ने. But Sharad, आपने बोला ना ये शो ने आपको popularity, and even we remember you still in this cast. ये तो बहुत आप अच्छी फोटो ले आई, इसमें मेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है. इनिशियली तो बहुत ही खराब थी. So when जब आपने transition किया from TV to films, did someone tell you कि शरद आपकी TV की image is overexposed, so maybe it won't work in films? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको. उसमें एक when you get into an image, फिर वो प्रॉब्लम वहाँ होता है. मैंने क्या किया, जब मैंने 7 फेरे शो किया तब मैंने 3 साल वो शो किया, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अभी जहाँ पहुँचना था एज एन एक्टर मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ. अब कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है. और जैसा कि होता है हमारे इंडस्ट्री में, टाइप कास्टिंग इज़ देयर एवरीवेयर. आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों ने मुझे जैसे शो ख़त्म हुआ, लोगों ने मुझे सिमिलर करीबन 10-12 शो ऑफ़र कर दिए. मैंने डेलिबरेटली कोई चूज़ नहीं किया. मैंने एक शो किया जो मुझे एकता ने दिया, और वो था एंटी हीरो शो था वो. उसमें तो वो मैंने किया, तो लोगों ने मुझे गालियाँ दी मुझे कि तू इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है, इतना स्वीट है, इतना अच्छा है, सब सारे हाउस होल्ड तुझे लाइक करते हैं. तो मैंने कहा नहीं, बट मैं एज एन एक्टर ग्रो नहीं कर रहा हूँ. तो जब मैंने वो कैरेक्टर किया तो इनिशियली लोगों ने जब प्रोमोज आया मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, लेकिन फिर जब वो शो देखा तो उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं यार, तो कमाल का काम कर रहा है बंदा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर चूज़ किया, बड़ा गट्सी है. वो ख़त्म हुआ तो फिर नेगेटिव ऑफर हुआ, तो फिर मैंने एक मैच्योर डॉक्टर का शो. सो आई केप्ट ऑन चेंजिंग माई कैरेक्टर्स. तो उससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्ड नहीं हुआ कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊँ उस टाइम. और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों सब लोग
मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे शिकायत भी है कि या तो मुझे पुलिस वाला या मुझे विलन यही बना के रखते हैं, पता नहीं क्यों। तभी आई थिंक एक फिल्म आई है श्रीकांत, जहाँ लोग देखेंगे तो शायद कुछ परसेप्शन टूटेगा उनका। अरे रे रे, मेरी पहली हिंदी फिल्म हलचल, और मैं नया नया बॉम्बे आया था, तब की फिल्म है, और अन्ना के साथ फ़ोटो है, बड़ी अच्छी फ़ोटो है। बहुत हम काफ़ी साल से हम लोग साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, गाइड भी हैं, और तो मुझे बहुत सिखाते रहते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग यादें इस फिल्म से यार, बिकॉज एक नया लड़का जब बॉम्बे आता है और सेट पे जाता है, उसे जो भी रोल सुनाया गया बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़ी फिल्म है। जब वो कहानियाँ तो बहुत बुनते हैं लोग, कहानियाँ बहुत बुनी गई किरदार के इर्द गिर्द कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन व्हेन एन एक्टर कम्स टू मुंबई न्यू, तो वो सब तो सबके साथ होता है, वो नया नहीं है। बट मेरे लिए बहुत अच्छा ये था कि मैं पहले सेट पे गया, और वहाँ पर आप अगर एक्टर्स देखें तो जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी सर, अमरीश पुरी साहब, अरशद सर, अक्षय खन्ना सर, मतलब करीना वॉज देयर, शक्ति कपूर वॉज देयर, राजपाल वॉज देयर, अरबाज सर वॉज देयर। इतने एक्टर आपको एक सेट पे मिल जाए, ऐसा लगता है कि मैं पूरा मुंबई घूम लिया मैंने। सो फॉर मी दोज इंट्रैक्शंस विद स्मॉल विद अमरीश जी में भी, मैं ऐसे बाहर रह के बैन में उनसे, तो आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट वंस हु एक्टेड विद अमरीश पुरी साहब। तो मुझे बड़ा बड़ा गर्व फील होता है। इनफैक्ट उनका जो पोता है मेरा दोस्त है, वरदान, तो मैं उनसे बोलता हूँ यार, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ एक बार काम करने का मौका मिला है। सो ग्रेट मेमोरीज विद दिस फिल्म यार, बड़ा पुराना टाइम है। हाँ, इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलो कैसी लगी आपको फिल्म, कैसा लगा मेरा काम। पाथ ब्रेकिंग में, हाँ, मतलब मेरे लिए कुछ, वही मैंने बोलता हूँ, मैं हमेशा मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि मैं खुद को ज़्यादा सरप्राइज़ कर सकूँ लोगों के साथ, कि लोग भी सरप्राइज़ हो और मैं भी ज़्यादा सरप्राइज़ रहूँ अपने आप से कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो थैंक यू राघव लॉरेंस सर और अक्षय कुमार सर, स्पेशली अक्षय सर और टीम जो प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझे ये फिल्म दी, बिकॉज शबीना अगर मुझे बुलाती, अक्षय सर बोलते नहीं, शबीना मुझे बुलाती नहीं तो शायद मुझे, तो थैंक यू शबीना फॉर द फिल्म। अरे आई थिंक जैसे आप कहते हैं ना कि आप करियर शिफ्ट करते हैं तो वो कठिन होता है कि नहीं होता। आई थिंक दिस फिल्म ब्रोक द नोशन की मुश्किल होता है। ये एक फिल्म से आई थिंक मेरा ट्रांजिशन इतना स्मूथ हुआ है, तो थैंक यू बंसाली सर। ये एक फिल्म आई थिंक आज भी लोग मुझे इस फिल्म से जानते हैं, और देनो कांजी भाई, तो और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है यार, मतलब एक बड़ा सिनेमा क्या होता है, एक ग्रैंडनेस क्या होती है, एक फिल्म क्या होती है, वो आप जानना चाहते हैं तो भंसाली सर से अच्छा कोई है नहीं आपके पास। स्ट्रिक्ट है जैसे तो बोलते हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट तो नहीं है, वो जो चाहते हैं वो आपसे मांगते हैं। अगर आप एक टेक में कर लो तो एक टेक में, नहीं तो 50 टेक भी लग जाते हैं, 100 टेक भी लग जाते हैं, बट वो छोड़ते नहीं है। दैट्स कॉल्ड हिज विजन यार। उनको जैसे चाहिए वैसा आप डिलीवर करो, इसलिए आपको कास्ट किया हुआ है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो या आपको टाइम लग रहा है तो वो निकलवा लेंगे अंदर से कि आप करो, हो जाएगा, क्योंकि आपको कास्ट से इसलिए किया है क्योंकि आप एक्टर हो, और उनको ये पता है कि आप डिलीवर कर सकते हो। अब वो अंदर से कैसे निकालना है, वो आपका एक टेक में आएगा, 5 टेक में निकलेगा, तो आप करते रहो कोशिश, और दैट्स अ प्रोसेस विच आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं तो आप परवाह मत करो कितने टेक हुए। फिर से फ्लैशबैक होता है। अरे तो मेरे मॉडलिंग डेज के फोटो हैं यार, ये कौन कौला लड़का है ये बहुत ही ऐसा, मैं आई थिंक फर्स्ट पोर्टफोलियो इन मुंबई विद वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड जीतू सावलानी है शॉट, और ये पिक्चर बहुत सालों तक मैं यही पिक्चर यूज़ करता रहा, बहुत सालों तक, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं दूसरा फोलियो कराऊं, तो बड़ी मुश्किल से ये कराया था मैंने, और बहुत सालों तक काम आया मेरे। और मेरी बीवी ने मुझे यही देख के पसंद किया था शायद उस टाइम पे। I have a question on हाँ, श्रीकांत, अगर किसी ने फिल्म नहीं देखी है श्रीकांत तो प्लीज जाके थिएटर में देखिए। Sir, did you really charge the minimal amount for this? हाँ बब्बी, क्या मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसके बारे में, लेट द प्रोड्यूसर्स। What happens now? Actors देखिए मैं applying money. नहीं, आई टेल यू, तुषार के साथ मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, वो क्योंकि तुषार एंड मिलाप वर वेरी क्लोज टू निशिकांत कामत,
मैंने 2 फिल्में की थी, तो अक्सर तुषार से भी मिलना होता था, मिलाप से भी मिलना होता था और कहीं न कहीं दोस्ती हो गई थी एक। एंड आई न्यू कि तुषार के ऊपर बहुत सारे टैग्स थे कि वो मस्ती और ऐसी फिल्में लिखता है। बट व्हेन ही मेट सांड की आँख, ही प्रूव्ड आई थिंक एवरीवन रॉन्ग। बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उसने। तो जब वो मेरे पास ये फिल्म लेके आया एंड बिकॉज़ दे वर प्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, Nidhi was producing for the first time. So I didn't get into the budgeting details and all. और बात उसने कहानी नरेट की। मैंने कौन कर रहा है, तो बोला राजकुमार कर रहा है, श्रीकांत का रोल। कहानी इतनी सिंपल कहानी लिखी है ना उसने, मतलब नॉर्मली ऐसी फिल्मों में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत मेलोड्रामा होगा, ये होगा वो। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बड़ी सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म थी और वो जो एक स्पेशल एबिलिटी के साथ लड़का है और वो स्पेशली एबल्ड एक्चुअली पूरी फिल्म के अंदर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें करता है और जो उसकी लाइफ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में और कहीं ना कहीं तो मुझे कहीं ना कहीं उस कहानी बड़ी पसंद आई और मैं हमेशा कहानियों की इज्जत करता हूँ। तो तुषार बोला यार बजट कम है, तो मैंने बोला यार बजट नहीं है तो नहीं लूँगा तुझसे पैसे और क्या, कर दूंगा ऐसी फिल्म, बस मेरे साथ जो काम करते हैं उनका ख्याल रखना तू। तो आई थिंक वही रीज़न था, तुषार की दोस्ती है, कहानी बहुत अच्छी है और यार पैसों का क्या है, जब आना होंगे तो आ जाएंगे, कौन लेके जाएगा किस्मत। This one is something you like. अरे भाई मेरी फैमिली है, मेरी लाइफ है, मेरे सब कुछ है। ये मेरी 3 लेडी लक्स हैं जो मेरे साथ है, मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। तो इनके बिना कुछ नहीं लाइफ है। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब एवरी बॉय और एवरी मैन नोज़ कि उसकी लाइफ में उसकी फैमिली ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एंड ये 3 लोग मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, उनके बिना कुछ होगा नहीं मेरा। Thank you so much, Sharad. Hope Thank you you. enjoyed Yeah. these memories. It was a lovely experience यार, बहुत टाइम बाद मैंने I went back to the memory lane and बहुत कुछ मज़ा आया देखने में। Thank you. Thank you, Akriti. Thank you. Hi, this is Sharad Kirkar and you are watching me on Bollywood Bubble.